Good morning, students. How are you? I hope you are doing well during this time. Students, as you know that your chapter number 5 advanced feature of Excel is going on, and this chapter is on now revision mode. Currently, you are trying to revise each and every topic in a thorough way and try to get the benefits of this. So right now each and every topic is covered here. Okay. So I will request that kindly watch the previous videos so that you can have the revision session, as well as in the previous video you can also have some kind of practical demonstration for each and every topic which is related to your practical. Okay students. So now students, it's time to introduce myself. This is your computer science teacher Viren, and I am here to give you the most important revision session on Microsoft Excel. So in today's class, what we are going to study here? Okay, let me give you a demonstration about this. Means what topic we are going to study here, and then after we will proceed. Okay, so right now we will have a little bit of introduction. Then after we will study about types of chart, and in this what kind of chart we are going to study, that is bar chart, column chart, pie chart, area chart, line chart, and finally we are studying about XY chart, or you can say scatter chart. Okay, so these kind of chart we are going to study. So students, before proceeding, first of all I just want to give you a warm welcome on my YouTube channel. Students, if you like this video, definitely I just want to subscribe and share this video to other of your friends, so that other friends can also know about the what are the things, what are the topics is going to cover in this video. Okay, and I insist you that kindly watch the other videos of mine so that you can have some extra knowledge about the same. For practical demonstration, for extra knowledge, just watch my YouTube channel. Okay students, so now it's time to start this video. So today's video we will have some little bit different kind. The reason behind it, because right now I have to show which kind of bar chart is having, okay, for this kind of data is having, if you have now. So I am doing one thing, I have just prepared one data for you, and based on that data I will prepare the charts for you. Okay, so right now I am just going to use my laptop to demonstrate each and every kind of chart based on some data. Okay, so that you can have the better explanation, better exploration, and you will get the knowledge about the same. Okay students, so now without wasting any time, let's come to my laptop so that you can just study continuously till the last. Okay, and so please don't skip any of the part, because that's a very important thing. Please watch from starting till the last, don't skip anything. Okay, so with this, please come to my laptop to explore more. Okay, okay students, now I'm going to start the class. In today's class, as you know that the revision of chapter number 5 advanced feature of Excel 2010, this is going on, and in this video we are going to study about some introduction about charts, and what are the types of chart. These two topics we are going to cover, right? So first of all, let's have a little bit of introduction about chart. What is chart? Okay, can you give me the answer by using the YouTube comments? Okay, so please be ready and use the YouTube comment to give the answer of these questions. And during the watching of this video, if you feel that you have facing any kind of difficulty related to your watching of this video or the content, just immediately you give me a WhatsApp comment regarding this, and you can also use the YouTube comment regarding this, right? So don't hesitate, immediately inform me so that I can just rectify this problem here immediately.
So let's start the first part, that is introduction of the advanced feature of Excel. So as you know that in this we are going to study about types of chart, how to format the chart, and two more features are already there. But main focus is on the chart, right? What is chart? Chart is nothing but it's one kind of pictorial representation of the data which is already made in Microsoft Excel. You can say that there is one more different way, that is means you can say the pictorial representation of the data, okay, is known as chart. Okay, this is the one kind of a definition. And in the previous video you have already known about what are the various components of the chart, like once the chart is made in the Microsoft Excel, at that time you are having some kind of x-axis. Okay, x-axis is known as category axis, y-axis is the value axis. Okay, in the same way chart area is there, plot area is there, legends is there, data series is there. Okay, so like this there are various components of the chart components are there. Okay, so you can have it by using my previous videos, and right now the revision session is going on, so I request you must watch the previous video so that you can have a good knowledge about how we are going to do that. Okay, because in that video the practical demonstration is already there, right? So let's come to the next slide so that you can have the types of chart. Okay, so in the chart in this type of chart we are going to use these kinds of data. Okay, in the first column items are there, and in the second, third, fourth and fifth column there is some year is there, and how many desktop computers or items are getting purchased in during the year, that is mentioned here. Okay, so this is the data we are going to use for the upcoming charts. Okay, so let's come to the next slide. Okay, this is the some kind of situations which is already made here. Some data is made here for you. Okay, so that you can elaborate the content here, elaborate the topics. Okay, so as you know that it is written here, different scenario require different type of chart. मतलब ये हुआ कि आपके पास अलग अलग तरह के सिचुएशंस होंगी, अलग अलग टाइप के, और डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप डिफरेंट चार्ट को बनाओगे आप. ओके, अगले लाइन देखिए, टुवर्ड्स दिस एक्सेल प्रोवाइड नंबर ऑफ चार्ट टाइप्स दैट यू कैन वर्क विद. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जब हमें ऑलरेडी पता है कि अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग चार्ट्स टाइप को यूज़ कर सकते हैं, तो एक्सेल ये फैसिलिटी हमें देता है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चार्ट हम यूज़ कर पाए हैं. देखिए पहले पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ चार्ट दैट यू चूज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट यू वांट टू विजुलाइज. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब कभी भी आप जिस तरह का चार्ट आप बनाना चाहते हो, आप जिस भी टाइप का, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा आपने ले रखा है. जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि हम ये डेटा हम लेने वाले हैं. ओके, तो जिस तरह का डेटा होगा उसी तरह का आपका यहाँ पर चार्ट बनेगा, और उसको फिर डिफरेंट टाइप्स में हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू हेल्प सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यूजर्स, एक्सेल 2007 and 2010 and above has an option that analyze your data and makes a recommendation of the chart type that you should use. मतलब ये हुआ कि हम अपने इस एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ और उसके अंदर जो फीचर्स दे रखे हैं उसका जो यूज़ है हम एनालाइज कर सकते हैं इफ़िशिएंटली, और रिकमेंड कर सकते हैं कि किस तरह का चार्ट टाइप हमें यूज़ करना चाहिए. ओके, सो ये रहे आपके 2 पॉइंट्स. अब हम बात करते हैं चार्ट के जो डिटेल्स हैं. ये रहा आपका नेक्स्ट चार्ट. पहला हमारा जो चार्ट है वो है हमारा पाई चार्ट. सबसे पहले हम पाई चार्ट को देखेंगे. इसमें देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाए गए हैं. पहला सीरियल नंबर, दूसरा चार्ट टाइप, तीसरा है आपका व्हेन शुड आई यूज इट, और तीसरा हमारा है एग्जाम्पल. ओके, तो पाई चार्ट आप देखिए इसको दिखाई दे रहेगा, कुछ सर्कुलर आपको फिगर दिखाई देगा हमेशा. तो सर्कुलर जो फिगर है जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये आपको होल को रिप्रेजेंट कर रहा है.
जैसा कि डेटा हमने ले रखा है जिसमें कि आइटम्स दे रखे गए हैं और आइटम्स के अलावा ये आपके ईयर दे रखे गए हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 4 तरह के ईयर्स थे, तो यहाँ पे आपको 4 तरह का आपको कलर दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर हर एक पार्ट अपने आप में एक सेक्टर कहलाएगा, यानी कि ये हुआ यहाँ पर हर एक आइटम्स यहाँ पर शो करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट तरह के पार्ट्स का सेक्टर्स का यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए 4 तरह के आइटम है तो 4 तरह के ईयर है, तो उसी हिसाब से इन्होंने इसको यूज़ कर लिया। तो यूज़ कब करते हैं हम इसको देखते हैं। लिखा हुआ है when you want to quantify items and show the items as percentage। मतलब ये हुआ कि हम अपने आइटम्स को, जो भी हमारे पास आइटम्स हैं उनको हम क्वांटिटी में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्हीं आइटम्स को आप परसेंटेज में देखना चाहते हैं कि वो उस आइटम के बिहाफ पर कितना परसेंट आपका यूज़ हुआ। ओके, जहाँ कहीं भी ये सिचुएशन आती है हम यूज़ करेंगे पाई चार्ट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है बार चार्ट। बार चार्ट को इसमें आप ध्यान से देखिए, आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पर बार चार्ट में वाई एक्सिस पर सारी वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस पर। ओके, और आपका जो यहाँ पर, सॉरी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, जो हमारा वाई एक्सिस है वहाँ पर आपने ईयर मेंशन किया है, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर मेंशन किया है आपने वैल्यूज़ को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो आपकी बार चार्ट है, बार चार्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही आती हैं, और जो आइटम्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो आप मेंशन करेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू और वाई एक्सिस पे कैटेगरीज। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर रॉड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक तरह के बार्स हैं, या उनको आप स्लाइसेस कह सकते हैं, जो कि डेटा सीरीज को मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने आपको जो आपकी मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें सब आपको मैंने बताया है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट एंड व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। ओके, so let's read out the sentence for you. When you want to compare the values across the few categories, it means that the bar chart is used when you want to have a comparison between two things. Okay, if you're having two categories, two different types of categories, then you have to use the bar chart. And every time just ensure that whatever the values you want to use, that values always mention on the x-axis, means horizontally you have to mention. Likewise, in this bar chart you are able to see that the what are the rectangular rods, okay, having different colors. So that different color shows the different values. Okay, likewise you know that the data which is already used here, that data is having 4 kinds of error. So you are able to see that each and every year having 4 kinds of rods, 4 kinds of bar. मतलब ये हुआ कि आप अगर 2012 को देखें 4 तरह के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रॉड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बार दिखाई दे रहे हैं। 2013 में भी देखिए 4 आपको दिखाई देंगे। तो जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो रॉड्स के फॉर्म में हैं उसको हम बोलेंगे डेटा सीरीज। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग इन दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग इट। एंड आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे चार्ट अभी आएंगे जो आपको बहुत न्यू काइंड्स की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको मिलेंगी आपको। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे तक लास्ट तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट हमारा है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में इसमें आप देखिए यहाँ पर जो आपका बार चार्ट है वहाँ पर वैल्यूज़ को हमने मेंशन किया था एक्स एक्सिस पे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ को अब आपने मेंशन कर दिया है कहाँ पर, वाई एक्सिस पे, और जो कैटेगरीज है वो कहाँ पर आ गई अब एक्स एक्सिस पे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आप वैल्यूज़ को अब आप वाई एक्सिस पे ही मेंशन करेंगे। और यहाँ भी हम इस चार्ट को जो यूज़ करते हैं कंपैरिजन पर्पज, डिफरेंट कैटेगरीज जो हमारी हैं कंपैरिजन पर्पज के लिए ही हम यूज़ करते हैं यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपका कॉलम चार्ट। बाकी रेस्ट जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वही रहेंगी जो आपने पहले मैंने समझाई थी। ओके।
चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कौन सा चार्ट हमारे सामने आएगा. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, that's the most important chart for you, line chart, because if you see here the categories, okay, and the values means x-axis and y-axis, okay, both are represented here, and the values are always represented on the y-axis, okay, and categories are mentioned here on the x-axis. And you are using here 4 different kinds of line, okay, 4 different kinds of line, okay, and every line having a different color, different symbol, so that you can have to you can able to visualize in a efficient way. ओके, 4 अलग अलग तरह की लाइनें हैं, 4 अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज किए गए हैं वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो यूज़ हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, जो डेटा मैंने पहले बताया था उसी डेटा को इन्होंने यूज़ किया हुआ है. फिर आपका है लैपटॉप के लिए दूसरा सिंबल, मॉनिटर्स के लिए दूसरा और प्रिंटर्स के लिए दूसरा है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लाइन चार्ट का जो इस्तेमाल करते हैं हम ट्रेंड एनालिसिस के लिए करते हैं कि यहाँ पर कब कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है, कब कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और टाइम के हिसाब से ये देखेंगे हम, टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिक्रीमेंट आया, कितना इंक्रीमेंट आया. ओके, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं हम. ठीक है, चलिए एक सेंटेंस है यहाँ लिखा, उसको मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको. When you want to visualize trends over the period of time, मतलब क्या हुआ, इसका जो इस्तेमाल है हम यहाँ पर तब करते हैं जब हमें पीरियड के यानी समय के हिसाब से ट्रेंड्स को एनालाइज करना है. ट्रेंड का मतलब हुआ कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कंटेंट्स हमको मिलते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एरिया चार्ट है और एरिया चार्ट में जिस डेटा को अब हम यूज़ करने वाले हैं वो डेटा आपकी स्क्रीन पे है. इस समय हम दिखाई देंगे कि आपके पास टोटल 5 कॉलम्स हैं, जिसमें कि हम कॉलम नंबर बी से स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट क्वार्टर लिखा है, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, लास्ट में आपका ईयर है. ठीक है, इसी के साथ फ्लावर्स है, यहाँ पर फ्लावर है आपका, श्रब्स है, ट्रीज है. ठीक है, तो यहाँ पर एक आपके पास ये सामने डेटा है आपके सामने. ठीक है, इस डेटा को हम यूज़ करेंगे एरिया चार्ट में बनाने के लिए. चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में. ये रहा आपका एरिया चार्ट. आपको याद है 4 तरह के आपके क्वार्टर दिए गए हैं. क्वार्टर का मतलब होता है 3 एवरी थर्ड मंथ, एवरी 3 मंथ्स इन अ ईयर इज नोन एज क्वार्टर. ठीक है, पूरे 3 महीने को कहा जाता है एक क्वार्टर. यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है 4 क्वार्टर, यानी कि पूरे 12 महीने को 3 के ठीक हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, यानी कि हर एक क्वार्टर 3 महीने के बराबर है यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू इसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पर. ठीक है, कि $0 से स्टार्ट हुआ, $100 आया, $200 आया, $300 आया. कि एक क्वार्टर में जो फ्लावर्स की, ट्रीज की या फिर श्रब्स की कितनी बिक्री होती है, ये सारा कुछ यहाँ मेंशन किया गया है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये. एरिया चार्ट आर लाइक लाइन चार्ट. एरिया चार्ट क्या है, एक तरह का लाइन चार्ट होता है, एक्सेप्ट that the area below the plot line is solid. मतलब यहाँ पे यह हुआ कि यहाँ पर आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, जब वो आपस में चारों तरफ से घिर जाएगा तो एरिया आपका बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ इंश्योर करना होता है यहाँ पर कि देखा जाए कि लाइन चार्ट तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जब चारों तरफ से बाउंडेड हो जाएगा तो एरिया वो फॉर्म कर लेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा एरिया चार्ट. The area chart are used primarily to show the trends over the time or other category. यहाँ पर हम चार्ट जो एरिया चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो एरिया चार्ट हम फिर से जैसे हमने पहले बताया आपको यहाँ पर लाइन चार्ट में कि यहाँ पर जो टाइम के पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से हम ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं. यहाँ पर यही काम यहाँ भी करते हैं हम. ओके, हम समय के हिसाब से देखते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ, और ये हम देखते हैं समय के हिसाब से. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम. द चार्ट एट द लेफ्ट इज एन एरिया चार्ट फॉर आवर सिंगल सीरीज.
यानी कि इन्होंने जो एरिया चार्ट बनाया है केवल और केवल फ्लावर के लिए बनाया है, ठीक है। और अभी आपका ट्रीज और जो हमारे फ्लावर उसका बनाना बाकी है। तो उसको भी आप जब आप यहाँ पे मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है आपको उसको इस चार्ट को बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने केवल फ्लावर का जो डेटा है वही मैंने केवल सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इस डिस्कशन का जो बेनिफिट है, जो कंक्लूजन वो ये है कि एरिया चार्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ट्रेंड एनालिसिस करनी हो। दूसरी चीज़ हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर एक लाइन चार्ट किस तरह से बाउंड हो रही है, किस तरह से एरिया फॉर्म कर रही है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर लाइन चार्ट में इस्तेमाल किया था सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो ये रहा स्टूडेंट आप लोगों का एरिया चार्ट का डिस्क्रिप्शन, and I hope you are enjoying this video, and whatever the queries you have I am receiving on the YouTube comment, and I'm just trying to keep on replying instantly, okay. And still if some of the queries are left you can post me at any time. I will try to reply as early as possible, right. So now students, it's time to move to the next slide and let's see what kind of chart we have. So student, right now we are going to study about the XY chart, or you can say scatter chart, okay. And in this scatter chart we are going to use this kind of data which is already appear on the screen, okay. स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो डेटा है देख रहे हैं आपको मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर जैन से लेकर दिसंबर तक, और दो यहाँ पर हमारे वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, कैटेगरीज दिखाई दे रही है फ्लावर्स का और श्रब्स का। और यहाँ पर जो भी परचेजिंग की गई है, जो आपका कि जनवरी में कितने डॉलर आपने फ्लावर्स के लिए रखे हैं आपने, या कितनी बिक्री हुई है आपकी, तो वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसी को हम मेंशन करते हैं स्कैटर चार्ट में। लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक। ये रहा आपका स्कैटर चार्ट, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द पर्पज ऑफ स्कैटर चार्ट इज टू ऑब्जर्व हाउ द वैल्यूज ऑफ द टू सीरीज कंपेयर ओवर टाइम और अदर करेगी, ठीक है। यहाँ पर स्कैटर चार्ट का जो मेन मकसद है यूज़ करने का, वो है यूज़ करने का किस लिए, कंपैरिजन के लिए। लेकिन यहाँ जो दो सीरीज का जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है टाइम के हिसाब से। जैसे आप अगर ध्यान से पहले फिगर को आप देखेंगे, पहले चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पहले लिखा हुआ 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ डिफाइन की गई। उसके बाद डॉलर्स को डिफाइन किया गया वाई एक्सिस पे 0, 200, 400 से लेकर 800 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फ्लावर है वो उसके लिए रंबस यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पर जो आपका श्रब्स के लिए एक छोटा सा रेक्टेंगल यूज़ किया जा रहा है। नीचे वाले डायग्राम में दो जो आपका कर्व लाइन का इस्तेमाल किया गया है। फ्लावर के लिए यहाँ पर आपका देख रहे हैं रेड लाइन है और श्रब्स के लिए ब्लू लाइन है, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से आपने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया है। यहाँ पर जैसे आपका देखिए पहला जो आप देख रहे हैं $100 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए रंबस को कहाँ यूज़ किया गया है, और जो हमारा श्रब्स है 200 देखिए कहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह करके अलग अलग डॉट्स को हम यूज़ करते हैं, अलग अलग सिम्बल्स को यूज़ करते हैं अपने चार्ट को। अब देखो यहाँ पर जितने भी डॉट्स हैं, जितने भी आप सिम्बल्स यूज़ करें पूरी स्क्रीन पर फैले हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्कैटर चार्ट, and it is easy to understand, easy to give the explanation to the other person in a easiest way, okay. so यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ही आसान है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका स्कैटर चार्ट के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर स्कैटर चार्ट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी, ओके। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट है, जो हमारा इस स्लाइड का बिल्कुल लास्ट पार्ट है, वो हम देखने जा रहे हैं कि जो चार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हाउ इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस, ओके। तो आई हैव रिटन इन 3 points. लेट्स स्टडी द फर्स्ट पॉइंट एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. It allows you to visualize your data in graphical mode. It means that if you suppose you are having a lots of data, बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास है, तो जाहिर सी बात है आप उसको समझने में, एनालाइज करने में बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन वही अगर उसी बहुत बड़े डेटा को
अगर आप यहाँ पर चार्ट की हेल्प से आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका एफर्ट आपका कम हो जाएगा और लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे कंपैरिजन करना है, एक एक चीज़ आप तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। एक्सेल के फीचर का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में आपका है इट्स इजी टू एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन द चार्ट। यस, एब्सोल्युटली राइट। If you want to have any kind of comparison between the two categories, if you want to analyze the trends over the period of time, okay, so you can do in easiest way. Okay, that's why I have already told you, if a huge amount of data is there, that can be represented graphically. Okay, chaliye, let's come to the third point. Easy to interpret, compare data in the sense. Yes, if you want to interpret the data which is already represented here, okay, the interpretation is very easy, and due to this interpretation you can do the comparison work. Okay, what are the data written in the cells also. Okay, so by using the data which is already available, that can be interpreted in the graph form, chart form. Okay, so right now interpretation is very easy if you are using the graphical features of the Excel. सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं, यहाँ मैंने आपके लिए केवल 3 ही मेंशन किए हुए हैं, रेस्ट हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, कीप एंजॉइंग, ओके, एंड कीप स्माइलिंग ऑल्सो, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेरीज हियर। ओके, कीप इन टच विथ मी। Okay students, I hope you have enjoyed in this video and you have get a more knowledge about this. You have revised these topics in a thorough way and get the benefits of the same. But student, whatever the doubts you have during the watching of this video, you can ask anytime. I am always here, I am always available here to give the reply on your queries which is given on the YouTube comment as well as WhatsApp. You can also send a text message by simple text message by using your mobile also. I will just reply you. Okay, and if it is required, I will also make a call to you. Okay, students. So now it's time to finish off this video, and I request you once again, kindly watch the previous video and don't skip any part of this video and the other videos also. Keep watching it, keep smiling, and keep healthy. Thank you so much.